नमस्कार बच्चों। बच्चों हम पढ़ रहे हैं टॉपिक भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन चैप्टर 6 ऑफ हिस्ट्री क्लास 12. So in the previous part we have seen the various types of bhakti and it was in the various religions like Hindus, Muslims and all, and we have seen in previous chapters about Islam, how Islam has been a prominent religion of the time and how it spread, and what was the role of rulers in spreading the particular religion. Apart from that, we have seen that the various rulers, those who were of the Islam, they were cooperating with other religions also. They were giving the allowance money for the grooming of other religions, like we have seen in Khambat. The church need to be made. Then Akbar gave the money for that. And Akbar started a religion that was called Deen-e-Ilahi. Then we studied about one tax also, that was the jizya, which has to be paid by the non-Muslim people, those who are residing in the Muslim area, so that the Muslim rulers can protect them from various things. So this much we have studied in the earlier part, and about the principles of Islam, that God is one and Muhammad is the messenger of God who is one only. Then we studied about the 5 time prayers in a day. Fine. Then we studied about that alms or to be donated about the some money. Then we studied about the Ramadan Roza. Then we studied about there should be a once in a life they have to go for Makkah, Hajj. So in such a manner we have seen the principles of Islam in the previous topic. So that is very important. You have to learn all those things as I told you in the previous chapter. Today's chapter we will start like how we have given the name of Hindus and Muslims. Hindu और Muslim का नाम हमने कैसे दिया? कोई this is not like the part of religion. It was not mentioned in earlier texts which were maintained by the scholars of Sanskrit. Nowhere it is mentioned that they were particular Hindus or the Muslims. Gradually by people it was created that they are the Hindus and they are the Muslims, because nowhere in the earlier text the word Muslim can be seen. Even people were identified from the places they are coming. जहाँ से वो आ रहे थे उन places के नाम से उनकी पहचान होती थी. देखिए आप, between 8th to 14th century Muslim or word was never virtually used. इस वर्ड को पहले कभी यूज किया ही नहीं गया. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो पहचान कैसे हो रही थी, पहचान वाया हो रही थी जहां से वो आ रहे हैं. सपोज वो तुर्किस्तान से आए हैं, टर्किश है, तो तुरुष्का रूरल कहलाए. तजाकिस्तान से आए हैं, ताजिका कहलाए. पर्शिया से आए हैं, पर्शिका कहलाए. तो if the person is coming from the particular place, the person is going to be identified from the same name. उसको उसी नाम से जाना जा रहा था जहां से वो आ रहे थे. Then Turks and Afghans, जो तुर्क और अफगान थे बाद में शक और यवनास के नाम से आने गए. तो जो जहां से आ रहे हैं, then they are going to establish, they are going to be known by the name from where they are coming. Then one more community was identified there, that was the Maleccha. Maleccha कौन? जो कि कास्ट सोसाइटी के नॉर्म्स को नहीं मान रहे, जो आप कह सकते हैं बहुत बिलो कास्ट के हैं, एंड उनकी जो लैंग्वेज है that is also like that they are going to use a local word and they are not going to use any word which is derived from the Sanskrit. So the worst language, the language which they were using, that was not part of the Sanskrit. संस्कृत का पार्ट नहीं थी. तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि कम्युनिटी के जो नेम्स थे वो, अगर हिंदूज और मुस्लिम्स की बात करें, मोहम्मदन की बात करें, ऐसा कोई नाम हमारे प्रीवियस लिटरेचर में जो कि हमारे स्कॉलर्स ने लिखा, इट वॉज नॉट फाउंड. रादर देन दैट फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग, जहां से वो आ रहे थे उनको उस प्लेस के नाम से जाना गया. देयर नेम वाज केप्ट ऑन द नेम ऑफ दैट प्लेस ओनली. जैसे आपका तजाकिस्तान, तजाकिर,
पर्शिया, परशका, तुर्स एंड अफगान, शका से यजनास, और मलेशिया कौन, जो कि क्या नहीं करते हैं, सोसाइटी के कास्ट के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, एंड इवन दे डोंट यूज द लैंग्वेज विच इज कॉल्ड संस्कृत। अब हम बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को स्टडी करने जा रहे हैं, एंड दैट पार्ट इज सूफिज्म। हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट सूफिज्म। सूफिज्म जिसको तज़व्वुफ भी कहते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो नाउ व्हाट इज सूफिज्म? ये इस्लाम की एक ऐसी आइडियोलॉजी है, दोज हु आर नॉट बिलीविंग इन द ट्रेडिशनल थॉट्स ऑफ खलीफा एंड दे वर बिलीविंग समथिंग मोर देन दैट, जो बहुत रियलिस्टिक बात को करते थे, वो सूफी कहलाए। बट बिफोर दैट वी नीड टू नो द मीनिंग ऑफ सूफी। सूफिज्म एंड इंग्लिश वर्ड इन 19th सेंचुरी डिराइव किया गया। सूफिज्म था, और ये क्या है, इस्लामिक टेक्स्ट जो है उसका, उसमें इसको तज़व्वुफ कहा गया, एंड डिराइव फ्रॉम सफ। इसे डिराइव किया गया है, लिया गया है सफ से। SUF सफ का मतलब होता है वुलन क्लोथ्स। वुलन क्लोथ्स बोर्न बाय द सूफीज। सूफीज जो वुलन क्लोथ पहनते हैं, उससे सफ कहा गया, और उस सफ वर्ड से सूफी वर्ड का ओरिजिन हुआ, दैट इज सेड। सो आपको ये आप देखें, अगर हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क आते हैं, तो देखिए आप कहां से डिराइव हुआ, सफ से हुआ। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफ? दैट इज वूलन क्लोथ दैट इज worn by the सूफीज। एंड अदर्स जो लोग हैं, स्कॉलर्स, वो कहते हैं इट इज डिराइव फ्रॉम सफा। सफा का मतलब होता है प्योरिटी। प्योरिटी मतलब होता है पवित्रता, जो प्योर वे में एक्सप्रेस हो, वो है सफा। एंड डिराइव फ्रॉम SUFF। SUFF सफा से डिराइव हुआ, SAFA सफा। एंड इस सफा का एक प्रोमिनेंट मतलब होता है जिसको हम जान रहे हैं। तो आपके क्वेश्चन जो बनते हैं कि वर्ड विच वॉज ओरिजिनेटेड और डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, उस मीनिंग को हमको पता होना चाहिए। तो इस सफा का मतलब क्या होता है? द प्लेटफॉर्म आउटसाइड। क्या है ये? प्लेटफॉर्म आउटसाइड द प्रोफिट्स मॉस्क्यू वेयर अ ग्रुप ऑफ क्लोज फॉलोअर्स assembled टू लर्न अबाउट द फेथ। अब ये वो जगह है मॉस्क्यू के बाहर, मस्जिद के बाहर का एक प्लेटफॉर्म, जहां पे लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? टू नो अबाउट द फेथ। फेथ के बारे में, सच के बारे में जानने के लिए when the people are gathered on the particular place, that is called Safa, and from Safa the Sufis are meeting. अब सूफी कौन लोग हो गए? सूफी वो लोग हो गए those who are keen to know about the real meaning of religion or Islam, and they wanted to know about the faith. उनके लिए सिर्फ इस्लाम जो है वो ट्रेडिशंस को फॉलो करना नहीं है, इट इज मोर देन दैट, उससे कहीं ज्यादा है। एंड देयर द फॉलोअर्स ऑफ दैट वांटेड टू नो अबाउट द फेथ, कि फेथ क्या है, असली सच क्या है, उसके बारे में जानने के लिए ग्रुप बना जो कि सफा कहलाया। देन अर्ली सेंचुरी ऑफ इस्लाम, ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल कॉल्ड सूफीज, एंड दोज वर हाउ लाइक दैट टर्न टू एस्टिस एंड मिस्टिस, कि कुछ लोग अर्ली सेंचुरी में इस्लाम का एक रिलीजियस ग्रुप था, रिलीजियस माइंड वाला, जो सूफी कहलाया, जो एसेटिज्म, वैराग्य, जो कि हम बात हमारे हिंदूज में भी करते हैं, उसमें बिलीव करता था। साथ ही साथ मिस्टिकल, रहस्यवाद की व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड, उसके बारे में जानने के बारे में बिलीव करता था। सो दे वर द सूफीज, दे वांटेड टू नो अबाउट द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड, और रियलिटी क्या है उसे जानने के लिए दे हैव गिवन द पाथ, एंड दैट इज कॉल्ड द सूफिज्म। जो पाथ, जो वे उन्होंने उस सच को जानने के लिए बताया, वो क्या कहलाया? सूफिज्म कहलाया। सो सूफी, अब आप इसको वैसे भी देख लें, अगर हम देखते हैं कि वूल क्या होता है, ये बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट एक आइडियोलॉजी, और जो कि लोगों तक पहुंच पाए एक इजी वे में, और उस इजी वे से भी नीड टू कम टू नो अबाउट द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड, दैट वाज कॉल्ड द सूफिज्म, एंड इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द इस्लाम्स
ट्रेडिशनल वैल्यूज, जो ट्रेडिशनल की वैल्यूज थी, ट्रेडिशंस थे, कुरान में जो लिखी हुई बातें उससे कुछ अलग रियलिस्टिक बातें उन्होंने की, वो सूफी कहलाए। और अब हम देखते हैं कि इसमें आपके क्वेश्चन जो बन सकते हैं कि क्या हो सकते हैं बच्चों कि टर्किश डिश जो आए वो क्या कहलाए, तुरुष्का, तजाकिस्तान से ताजिका, पर्शिया से परिश्का, तुर्क और अफगान बाद में क्या कहलाए, शक और यवंस कहलाए। हु आर द मलेशियास, जो कि कास्ट के नॉर्म्स को नहीं जानते एंड देयर लैंग्वेजेस नॉट डिराइव फ्रॉम द संस्कृत। तो मलेशिया कौन हो गए, जो कास्ट नॉर्म्स को नहीं जानते एंड देयर लैंग्वेजेस नॉट डिराइव फ्रॉम द संस्कृत। अब नाउ कमिंग टू द रियल मीनिंग ऑफ सूफिज्म, दैट इज एन इंग्लिश वर्ड इन द 19th century। सूफिज्म क्या है, दैट इज द इस्लामिक टेक्स्ट, उसको तज़व्वुफ कहा गया एंड डिराइव फ्रॉम सफ। इसके अलग अलग ओरिजिन के वर्ड बताए गए। फर्स्ट बताया गया सफ, सफ क्या मतलब वूल, बिकॉज द पीपल दोज हु वर गोइंग टू preach about the Sufis, they were wearing the woolen clothes. Then the next word is safa. Safa meaning is purity, purity पवित्रता, derived from SUFF safa, जो कि सफा से निकला है, जहां वो क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। कहां पे है वो, outside the prophet mosque, where a group of close followers assemble to learn about the faith. Close followers जो सूफीज के हैं, they used to assemble there to know about the faith. तो क्या हुआ, सूफीज अर्ली सेंचुरी में इस्लाम का एक ग्रुप जो एक रिलीजियस माइंडेड पीपल थे, वो सूफी कहलाए, जिन्होंने एसेटिज्म और मिस्टिसिज्म की बात की, वैराग्य की बात की, रहस्यवाद मिस्टिक्स की बात की, एंड दे वांटेड टू नो अबाउट द रियल वर्ल्ड, रियल फेथ क्या है, उस फेथ को जानना, उस ट्रस्ट को जानने के लिए, उस फैक्ट को जानने के लिए उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बनाया, दैट वाज कॉल्ड सूफिज्म। अब आगे के टॉपिक्स में हम इस सूफिज्म के जो कंटिन्यूशन में ट्रेडिशन है उनके बारे में जानेंगे और समझेंगे। दैट वी विल कम टू नो अबाउट हाउ इट वाज स्प्रेडेड इन ऑल ओवर द इंडिया एंड व्हाट वाज द मेन मोटो बिहाइंड देयर आइडियोलॉजी। उस आइडियोलॉजी के बिहाइंड उनका मोटो क्या था, वो किन बात को एम्फसाइज कर रहे थे और किन बात के अगेंस्ट थे। इसके पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने एक जो टॉपिक था दैट वी हैव नॉट स्टडीड, दैट वाज कि मुस्लिम्स के भी टू सेक्ट्स थे, शिया एंड सुन्नी। जैसे हमारे यहाँ हमने कहा जैन्स में क्या होते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर होते हैं, और ईसाइयों में क्या होते हैं, क्रिश्चियंस में कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट। तो शियाज एंड सुन्नीज मुस्लिम्स की टू कम्युनिटीज थी एंड दे वर अगेंस्ट ईच अदर, जो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थी। और इशू क्या था कि जो अल्लाह के मैसेंजर हैं मोहम्मद, उनकी बाद कौन उनका सक्सेसर बने, इस बात पे करबला का वार हुआ था। उस करबला के वार के बाद में इन दोनों के बीच के जो डिस्प्यूट्स थे वो बढ़ते गए एंड द मुस्लिम रिलीजन वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, शियास एंड द सुन्नीज। तो मुस्लिम्स के इन ट्रेडिशनल डिस्प्यूट्स को देखते हुए इस्लाम के वन मोर आइडियोलॉजी वाज रिकॉग्नाइज्ड, दैट वाज द सूफिज्म। और इस आइडियोलॉजी के बारे में इसके मेन पॉइंट्स क्या थे, व्हाट वर द मेन फीचर्स, हाउ पीपल वर इन्फ्लुएंस्ड विद दैट एंड हाउ दे वर वर्शिपिंग गॉड। वो अल्लाह की इबादत कैसे कर रहे थे, दरगाह क्या होती थी, पीर कौन होते हैं, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में थॉरोली स्टडी करेंगे। So what you need to do, you need to read the topic thoroughly from the book and you need to maintain the notes also in your copy of notebook of history, and don't forget to find the questions from CBSE My Guide so that chapter wise clear questions, what sort of questions can be made, that will be clear to you and you will be able to know about much more कि what sort of questions can come. So अगर सूफिज्म का इंट्रोडक्शन आता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन से वर्ड थे, वो वर्ड ये हैं, तज़व्वुफ भी वही, सूफिज्म भी वही, इसके साथ में वो कौन लोग थे, उनका मतलब क्या था, सफा का मतलब क्या होता है, ये हमने पढ़ा। जो बातें हम पढ़ रहे हैं बच्चों को, डोंट फॉरगेट दैट, डू रिमेंबर, डू रिवाइज एंड डोंट फॉरगेट टू रीड फ्रॉम द बुक। बुक का आपको पर्टिकुलर 9 to 9 स्टडी करना ही है। सो इन नेक्स्ट पार्ट वी विल लर्न मोर अबाउट
the suffix. Thank you so much.